ہاں اس کو برا لگا جب میں نے کہا ہم لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی یہ حکمران نیک ہونے چاہیے اور قوم منافق نہ ہو. ہاں نہیں مطلب صرف کہنے کے یہ کہ یہ لوگ کس قدر ضلالت کے ذلیل نیتوں کے لوگ ہیں. یہ کہاں اٹھ سکتے ہیں بھائی؟ ہاں بہت منافق ہے سر. منافقت جو ہے نا یہ بڑی منافقت منافقت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جلن حسد. خلاصت کٹھے ہے یہ. ہاں جلن حسد. کالے اندر سے کالے اوپر سے ایمان کی باتیں کرتے ہیں. تم لوگ غزوہ جیتو گے تاڑی پہڑ دی غزوے اور پتہ بھی ہے تم لوگ پہلے غزوہ مہنگائی تو جیت لو, غزوہ بھوک تو جیت لو, غزوہ کیا بولوں میں اب منافقت کے خلاف غزوہ جیت لو. صحیح بات ہے. لگے ہیں غزوہ ہند جیت. کنجر کبھی غزوے نہیں جیت سکتے, اس کے لیے ایمان ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. سیدھی سی کنجر بات. قوم کی کنجر لوگ, ایک فرد اس کا کالے دل کا, ایک فرد سلب بد دیانت بد نیت ہے. اس لیے ان لوگوں کا بیڑا غرق سے بیڑا غرق ترین ہوتا جا رہا ہے. مگر یہ کنجر کے بچے نہیں سمجھیں گے. یہ ہر آدمی اپنا ایک اللہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے آپ کو دیکھا وہ آپ نے جو مجھے بتایا تھا 25 کا کہ 25 ہیلی کاپٹر, میں نے آپ کو ویڈیو بھجوائی ہے ہاں جہاز سے اتر رہے ہیں 25. ہاں جی ہائے 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 کیا ہیلی کاپٹر ہے. دیکھا کتنا خوف آتا ہے ہیلی کاپٹر دیکھ کے. دہشت گرد ہیلی کاپٹر ہیں. جب وہ اڑے گا تو کیا حالت کرے گا. دہشت سے دہشت آتی ہے دیکھ کے. ہاں ان کے پاس کیا ہے. اور وہ ابھی میں نے واجوہ کی بھی بھیجی ہے آپ کو, بیٹھ کے وہ جو تعریفیں کر رہا ہے سندھ کی اور وہ ساری باتیں. میں سوچ رہا ہوں ان کہ لوگوں کو سول میں جانا ہی نہیں چاہیے. ہاں, اور سندھ میں نا دیکھو دوسری بات ہے کہ اب سندھی بیٹھے ہیں آگے تالیاں بجا رہے ہیں, اور سندھ کی جو حالت ہے اور وہ سندھ کے اوپر جو ہے وہ کیا نا بھاشن دے رہے ہیں. اور میں دیکھ وہ سارے وہ غفور بھی بیٹھا ہوا ہے, دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور چپ کر کے سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ سندھ کا کیا بیڑا غرق ہوا ہے, ستیہ ناس ہو گیا, جو رڑ گیا سندھ. عائشہ کر رہے ہیں آگے جو لائن میں جنرل بیٹھے ہیں اپنی عائشہ کر رہے ہیں. ان کو کیا ہاں ہے کسی سے. تو وہ جناب قوم کو آپ قوم ہیں, جہاں پانی جاتا ہے اس طرف رخ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں ڈائلاگ بازی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. کوئی پریکٹیکلی کوئی گمبھیر بات ہوتی ہے نا, کہ پریکٹیکلی ہوتی ہے, وزن والی بات ہوتی ہے. پوری پتہ اسپیچ ہے میں کوئی وزن ہی بات نہیں کیسے تھی. جرنیل بن جاتے ہیں, کیسے بڑی سیٹوں پہ جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم, یہ لوگ اتنی امپورٹنٹ سیٹوں کے اوپر اتنے بونے کیسے آ جاتے ہیں. افسوس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے آپ نے انڈیا کی آرمی کو, کسی آرمی کے بندے کو یا جرنیل کو یا آرمی چیف کو سیولینز میں تقریریں کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا, بالکل نہیں دیکھا. ہسٹری میں دیکھنے کبھی نہیں ہوں گے وہ. ہاں نہیں, اور ان کی میں نے کبھی بھی یہ جو ہوتا ہے نا پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھی زیادہ, سمجھے نا, ہوتی نہیں ہے. ہوتی نہیں ہے کہ پریس کانفرنس بھی نہیں دیکھی کبھی, کسی کوئی جرنیل کو نہیں فوجی دیکھا. میں کوئی نہیں دیکھا ہوگا اتنی ہسٹری ہوگی 70 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ان کا فوجی آ کے پریس کانفرنس کرے ISPR کے نام پہ یا کسی نام پہ. ان کو عشق چڑھا ہوا ہے, ان کو کیمروں کا عشق چڑھا ہوا ہے, بس یہی ان بات کو وہ چڑھا ہوا ہے, گلیمر چڑھا ہوا ہے. ہے, گلیمر چڑھا ہوا ہے. ہمیشہ سے کچھ گلیمر چڑھ جاتا ہے. جب یحییٰ خان کو گلیمر چڑھتا ہے تو وہ نور جہاں کے اوپر چڑھ جاتا ہے. جب اپنا مشرف کو گلیمر چڑھتا ہے تو ناچ گانا شروع کرتا ہے اور ایشوریا پہ چڑھ جاتا ہے, بلا بلا کے اس کو 10 کروڑ دے کے گانے گواتا ہے. جنرل ضیاء کو گلیمر چڑھتا ہے تو وہ اپنے دور کی بیگم زری ظفر اور عطیہ عنایت اللہ کی آنکھوں کا ٹھڑک لیتا ہے. کیا یار, ہمارے فوجی ہوں تو چاہے سیاستدان ہوں چاہے گریڈس ہوں, سارے عاشق مزاج ہیں, سب ایک سے ایک بڑھ کے عاشق مزاج. ہم جو باتیں کرتے ہیں نا بھائی, ایک ایک ہمارا جملہ $1 ملین جملہ ہوتا ہے. اگر اس قوم کو سمجھ آئی, سمجھ نہیں جاتی ہے. سمپل سی بات بتاتی ہے, 2 لوتھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس, ایک زبان کا لوتھڑا ایک للی کا لوتھڑا. ان دونوں سے کام لیتے ہیں, دماغ سے کام لیتے نہیں ہیں. ہاں یہ ہندوستانی دماغ سے کام لیتے ہیں دماغ سے کیونکہ وہ گوشت کے لوتھڑے پہ نہیں جاتے. یہ ایک ان کا للی لوتھڑا ہے, ایک ان کا زبان لوتھڑا ہے, اور گوشت کھاتے ہیں اور رات کو گوشت پہ چڑھ جاتے ہیں. 9 مہینے بعد گوشت پیدا کرتے ہیں. یہ حال ہے 2.5 کروڑ 22.5 کروڑ عوام پیدا ہو چکی ہے. ابھی جیزت دیکھو, جامع کبھی پاکستان وہ کہ تو غریب ہو امیر ہو, ٹی کی شادی کر دیتی ہے اور ٹٹ کٹ کے آئی ہوئی ہے. شور کے کرتا ہے, کوئی کام نہیں کرتا جی.
डाले हुए हैं, टका टक बच्चे पैदा हो रहे हैं, और भाई कहाँ से खिलाओगे इसको, पता नहीं कहाँ से खिलाएंगे, लेकिन पैदा कर दिए जी। बहुत आबादी होगी, पाकिस्तान की आबादी भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा बेइंतहा आबादी बढ़ा दी है, ऊपर से महंगाई हो गई है, ऊपर से हालात ख़राब हो चुके हैं, ऊपर से मैं कहता हूँ हर तरफ से जो है वो अब इमरान खान ने हमारी वाली बात करी थी, जो हम कह रहे हैं, ये भी पिछली 2-4 हमने बातों में बहुत जोर जोर से कही है कि जंग हल नहीं है, मुज़ाकरात करो, सफारतकारी करो, बातचीत करो। जंग नहीं होता कि मैं आप बड़ा बदमाश है तो मैं ऐ करता कि बाद में तो पहले क्या कि बदमाशी ये होती है, डराओ, अगर डर जाए तो ठीक है, वरना खुद डर जाओ। सही बात है। ये उससे चलते हैं, मैं तगड़ा मैं तगड़ा मैं तगड़ा मैं तगड़ा से तू तू ये जी भाईजान की गल है भाईजान, ये वो कौन है भाई, मैं बिल्कुल अगेंस्ट इस चीज के ऊपर, टोटली अगेंस्ट, लेकिन डोमिनेट करती है हमारी जो पाकिस्तान की फौज है, वो डोमिनेट करती है सिविल के ऊपर, सिविल सिस्टम के ऊपर, इनको इनका बनता ही नहीं है। ये एक वश का फिल्फास में बात है, इसमें कोई किसी की खिलाफ बात नहीं हो रही है, लेकिन मिलिट्री का सिविल में जाना बनता ही नहीं है, ये छावनियों तक महदूद रहना बनता है इनका। हाँ बिल्कुल। सिविल सिस्टम चल रहा है, माशरा चल नहीं रहा है, सिविल सिस्टम इनका छावनियों में बंद हो जाना चाहिए, इनको बॉर्डरों पर बंद हो जाना चाहिए, सिविल में इनको नजर नहीं आना चाहिए, इनकी जीप या इनकी कोई गाड़ी नजर है उसका चलान होना चाहिए। हाँ सही बात है। ये जाके तो सिविल लोगों में तकरीरें करने का इश्तरा हुआ है, ऑडिटोरियल तकरीर हो रही है, कोई किसी से मिल रहा है, फोटोएं खींच रही हैं, ट्वीट हो रही है, दिमाग खराब हो जाते हैं, ट्वीट हो रही है, फोटो भी जाते हैं, दलों के दिमाग खराब हो जाते हैं। हाँ और ट्वीट हो रहे हैं। हाँ मुझे तो हंसी आती है यार, पता नहीं हमारे ओह इनसे सिर्फ पूछ लें कि ट्वीट जो है, चाहे ये हो चाहे वो, ये ट्वीट जो है ये क्यों नाम रखा है ट्वीट वालों ने? अब ये सोच के ये अब उनसे ईमेल करके पूछना पड़ेगा। नहीं, हमारे जो कभी हम ये बोलेंगे ना तो हमारी भी बात को सुनेगा, हम इसमें याद से बोलेंगे, लोग बताएं ये ट्वीट ट्वीट करते रहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्वीट? हाँ ये बात तो है। क्यों उन्होंने ट्वीट का लफ्ज लिखा है और उसके ऊपर चिड़िया बना दी है? कोई तो मकसद होगा, अब तो मकसद इतनी गहराई में जाते नहीं, ये सब चीज इस्तेमाल करने की आती है, चीज है फटाफट इस्तेमाल करो, इस्तेमाल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग तो सोचते हैं, आखिर ये ट्वीट लफ्ज लिखा है, इन्होंने नाम रखा है, ऊपर चिड़िया बना दी है, तो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सही बात है, सही बात है। जब अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्यों रखा है, हमें जरूरत नहीं है कि हम बताने लगी। जब चिड़िया चहचहाती है तो उसको कहा जाता है बर्ड्स आर ट्वीटिंग। सही बात है, सही बात है। चिड़िया चहचहा रही है तो वो मुख्तलिफ चहचहाती है, इससे मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर उन्होंने चिड़िया का निशान देके ट्वीट कर दिया है, चहचहाओ, आपस में चहचहाओ, ये माने है ट्वीट के। तो फिर अगर हमारे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स और फौजी ट्वीट करते हैं तो उनको चहचाने दो, हमें गिला क्या करना। वो तो चहचाना क्या, वो तो करेंगे, उनको करना चाहिए। चहचाना तो बड़ा प्यारा लफ्ज है, नाजुक नाजुक खूबसूरत चिड़िया चिड़िया सी चीजों की ट्वीटी है, और हमारे यहाँ गधे घोड़े सब ट्वीट हो रहे हैं, चहचहा रहे हैं, चिड़िया की बात ट्वीट कर रहे हैं, कुत्ते घोड़े ऐसे हर तरह का कुत्ता बिल्ला वो ट्वीट कर रहे हैं। तो वाला तो लेकिन देशों से नहीं मिलती। चलो जी, बड़ा अफसोस होता है, क्या करें। अब उसका याशी मारने बाजे मैं एक चीज देखा था कि हर चीज ये फटाफट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, खूब
टेलीफोन निकले, कोई भी चीज गाड़ी निकले, कोई भी चीज निकले, सबसे पहले मुसलमान जाके उसके ऊपर छापे मार के उसको खरीद कर ले आते हैं। कोई पता नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी है, खुद बनाना चीज बनाना चाहिए। अभी कल मैंने देखा एक लड़का, वल्ला वल्ला वल्ला, वैसे उसने खुदा ने वाकई पाकिस्तान में बहुत टैलेंट दिया है, मगर ब्यूरोक्रेट्स ने सभा कर दिया टैलेंट को। ऐसे ही है, ऐसे। बच्चा कहता है, उस बच्चे ने पता नहीं क्या चीज निकाली है, एक गरीब बच्चा मैकेनिक, उसने कोई ऐसी चीज निकाली है जिससे मोटर बाइक अब चोरी नहीं हो सकता, और उसने कहा है कि अगर गवर्नमेंट मुझे वसाइल मुहैया करे तो मैं पानी से चलने वाली गाड़ी बना के दे सकता हूँ। ओह माय गॉड। गरीब बच्चा, वो कहता है मुझे सिर्फ हुकूमत मेरे सर पे हाथ रखे, मैं पानी से चलने वाली गाड़ी बना के देता हूँ। अगर गवर्नमेंट अक्लमंद हो तो उस बच्चे को पिक करे, उससे वो पानी पे चलने वाली ना सिर्फ गाड़ी बनवाए, उसको इंडस्ट्री की शक्ल दे, उस इंडस्ट्री को फ्लोट करे, उस इंडस्ट्री से हजारों हजारों 3-4 हजार आदमी को रोजगार मिलेगा। उस इंडस्ट्री से आप दुनिया पे अपनी गाड़ियां बेच सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, लोग आपसे खरीदेंगे, लोग आपसे जो है फ्रेंचाइज खरीदेंगे, लोग आपसे आप टेक्नोलॉजी उनको ना दे, लेकिन आप उनको दे सकते हैं कि भाई ठीक है आप अपने मुल्कों में लगाइए, कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट तरीका है, क्योंकि इन दलों को जो टैक्सेस आते हैं, जो गाड़ियां पोर्ट होते हैं, जो यहाँ के कंजरों ने यहाँ पर गाड़ियों के असेंबली प्लांट लगाए हुए हैं, वहां से जो पैसा आता है वो फिर बंद हो जाता है। पेट्रोल की मद में किक बैक्स लेते हैं, गाड़ियों की मद में किक बैक लेते हैं, ये किस किस की मद में किक बैक्स नहीं लेते। तो फिर कैसे ये सपोर्ट। एक और आदमी को उन्होंने जिससे जहाज उड़ा दिया था, जहाज बना के उड़ा दिया था, उसको उठा के अंदर बंद कर दिया। एविएशन वालों ने उसको बंद कर दिया है कि तुमने हमारी फजाई खिलाफ वर्जी की है। नरेंद्र मोदी साहब ऊपर से जूतर मत काटे हुए जा रहे हैं, जिनका जहाज जा रहा है, और जो पाकिस्तानी ने जहाज बनाया है उसको अंदर बंद कर दो, और नरेंद्र मोदी को गुजरने दो। बड़ी स्टुपिडिटी है वैसे, बहुत कुत्ते लोग हैं भाई, बहुत ही कुत्ते लोग हैं। यकीन कर सकते हैं, अपने मुल्क में उस बंदे ने जहाज बना के उड़ाया है, छोटा सा, उसने कहा है कि मुझे सरपरस्ती करो, मैं बड़े जहाज बना सकता हूँ। उसको उठा के ना सिर्फ अंदर बंद कर दिया, बल्कि इतना डराया कि वो पता नहीं बंदा कहाँ किसी खुद में घुस गया है, कहाँ पर होगा कि मैंने किधर ना, मैंने भी किधर इस तरह एटीएम वाले तरह मार मार के थाने में मारना दे, छुप गया। फिर एक और बंदे ने साबित किया, मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसे कहा जी मैं गाड़ी बनाता हूँ पानी से चलने वाली वगैरह वगैरह। एक और बंदा था वो पहले, अभी कोई साल हुआ, उस बंदे के लिए पुलिस आ गई, उसका जनाब ने सामान तोड़ दिया, ये किया वो किया, लटरम पटरम। वो बंदा जो उसे कानों को हाथ लगाए, कहता मुझे कोई जरूरत नहीं है, इतना जुल्म हो रहा है। जिसने जहाज उड़ाया था उसका जहाज तोड़ ताड़ के ट्राले में डाल के लेके जा रहे हैं। ये मुल्क तरक्की करेगा, ये गजवा लड़ेगा। बहन चौथ बड़े कुत्ते बैठे हैं, बड़े हरामी बैठे हैं भाई ऊपर, बहन चौथ। इन लोगों के, मैं कहता हूँ इन लोगों को पकड़ पकड़ कत्ल करना चाहिए। करते हैं, वर्दियां पहन के, शेरवानी अजगर शलवारे कमीजें कलफ लगी हुई मर्सिडीज में उतरते हैं, जाके गरीब आदमी फुद्दू आके बैठा हुआ, उसको कहते हैं नारा लाना ही नहीं लाना तो उन्होंने कर देंगे, और नारे मार रहे होते हैं। पर किस गलत नारा मार रहे जी, नारा मारे को मैंने पता नहीं, बस ऐसे नारा मारना है, नारे मारे होते हैं। ये पैर की चीजें करते हैं, इनका बनता है। वहाँ बड़ी सीट पे बंदा बैठा हो, पूरा मुल्क चला रहा हो, पूरे मुल्क में उसका डोमिनेशन हो, तो वो ऐसी खबरों पे अपने मुल्क का जो वफादार हो, हाँ, अपनी अपनी बल पे टास्क फोर्स बना दे कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान की बासलाहियत बच्चे या वो लोग नजर आते हैं जो कुछ बनाते हैं, इजाद करते हैं, उनको पिकअप करो, उनको हाँ, पिक करो, और टैलेंट को उठाओ। टैलेंट को उठाओ, मेरे पास लेकर आओ, हाँ, फिर मैं हुक्म जारी करूंगा किस किस को क्या करना चाहिए इनके लिए। इनको तो है ही नहीं, बैठ के वहां पे अजकरे ले रहे हैं, जो टोपियां पा रहे हैं, तो बकवास या सिंध में ही हो गया, सिंध में वो हो गया। बड़े यार, ऐसी बातें इनकी खत्म नहीं हो रही, इनकी वर्दियों में पैर की बैठे होते हैं, लचक नहीं जैसे तो बस अंदर इतने काले जिसम बदबूदार दिखा, जिसम होंगे इनकी नीयतें बदबूदार हैं। दो ऑर्डरली एक ही वर्दी पे लगाए होते हैं। पाकिस्तान की फौज है ना 12 लाख है, जिसमें से 2 लाख जो है ना फौजी सिर्फ अफसरों के ऑर्डरली हैं, घरों में काम कर रहे हैं। तो वो जंग भूल चुके हैं, असला पकड़ना भूल चुके हैं। मैं ये आर्मी खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ। हर
बंदा अपना काम करे भाई। मुल्क किधर जा रहा है? उनके देखो अपाची उतर रहे हैं, अपाची को देख के खौफ आता है कि एक दफा वो अकेला अपाची जो है ना आवाज में फिर क्या पूरा राज में खा जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये टट्टू किस्म के हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं, उन्हीं के बल के बच्चे दिखाते हैं कि फुटू लगाते रहते हैं। ना कुछ खरीदा है, इतने 1800 अरब 18,000 अरब इतने भी इनके इनके बजट में वो पैसा जाता किधर है? ना कोई असला खरीदा, ना कोई लेटेस्ट गाड़ियां खरीदी, ना कुछ लेटेस्ट हेलीकॉप्टर खरीदे, ना लेटेस्ट जहाज खरीदे। 40 साल पुराने F-16 को चाट रहे हैं। F-16 है, F-16 है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि उसने अभी नंदन साहब ने F-16 कराया भी है कि नहीं। अगर कराया तो बस समझ ले कि फिर उनकी हालत क्या है, जो हम कहते हैं ये हालत होगी इनकी। पुर्जे नहीं है इनके पास उसको दोबारा चलाने के लिए। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती है कि वैसे इतना पैसा था पाकिस्तान में, इतना पैसा था कि अगर ये इस्टेब्लिश करते हैं अपना डिफेंस को भी और हर चीज़ को तरक्याती प्रोग्रामों के ऊपर लगाते, मंसूबों पे लगाते, तो कितना डेवलप करता पाकिस्तान। आखिर पैसा तो है ना, राशन नहीं मुक्ति ना। पैसा बहुत है। एक और उतारा है, पता नहीं किस दूसरे के नाम बताऊंगा आपको, अभी बढ़ रहा है। 1,90,00,000 रुपया अपने मन पसंदीदा अफराद को बैरून मुल्क दौरों पे भेज दिया। अच्छा बस, अपने मन पसंदीदा अफराद को, ये जरूरत नहीं है। यार नो कमेंट्स, बंदा क्या बोले क्या कहे। जैसे पैसा निकलवाना है, खबरें आती रहती हैं। हमें देखा था हकान बाजी 42 दिन नैब की कोर्ट से निकल के आया है, विको में से निकला उतरा है, और ऐसे जनाब चल रहा है चौड़ा होके, और सब उसको सलूट मार रहे हैं। कोई के गले लग रहा है, कोई लुली लग रहा है, कोई टांगों पे लिपट गया, कोई के सर पे लिपट गया, ऊपर से सब पंखड़ियां फेंक रहे हैं, फूल की पंखड़ियां फेंक रहे हैं, और जैसे कि वो एक हीरो आ रहा है। नैब के पास 42 दिन रहा है, उसने उनको टच तक नहीं किया, नजर आ रहा है दांत निकाल रहा है, जिससे बाकी नैब के लोग आते हैं। ठीक है, वो कहता है मुझसे किसी ने एक सवाल नहीं किया आज तक, 42 दिन रहा हूँ, मुझे नैब ने एक सवाल तक नहीं किया। नैब ने क्या ड्रामा बनाया हुआ है? एक सवाल नहीं किया, और दूसरा ATM से 10 रुपए चोरी करने वाले को मार मार के उसके पूरा वर्क कर दिया, मार के उसकी जान से मार दिया। बूढ़े बाप का वाइफ सारा था वो, पूछने कोई नहीं है। मैं अभी आज सुबह से 10 वीडियो देखी है, एक रेंगला खान में, एक कहाँ एक कहाँ एक कहाँ, हर एक के कपड़े उतार के दिखाए जा रहे हैं, मार मार के पुलिस ने जिस्म काला कर दिया। सिर्फ वो नहीं, जो मर गए 2 बोतल लगे, उसके अलावा 3-4 केस और सामने आए हैं। बेलगाम बेहंगम हो चुकी है पुलिस, अंदर डालते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। अब उसके ऊपर जाकर देखें शुरू हो डाले पे वहां भी लगा हुआ है, जिसम फटे हुए हैं उनके मार खा खा के पुलिस के। अब कुछ वो के टोकरी वाले पूछने वाले नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ये वहां पर जाके तकरीरें करते हैं, शेरवानियां अच्छे कपड़े पहन के वर्दियां पहन के तकरीरें करते हैं। बड़े बेगैरत है, बहुत बेगैरत यार। किसके संग बैठे हुए हैं कि इनके होते हुए अवाम इस तरह से। आप बताएं कि जिस शख्स का जो बुरा सलूक हो रहा हो, वो कहेगा मेरा तो खुदा भी नहीं है, क्योंकि वो तो आप ही है ना बचाने के लिए, सट्टे तो पड़े ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए बंदे जमीन पर वो भी नहीं है, किसके पास जाएं? कितनी बेबसी है। और ये अपनी अय्याशियों से और अपने क्या उसके कहते हैं, मेरे पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं, उससे इनको फुर्सत नहीं है। बड़ी बड़ी गड्डियां, बड़े बड़े प्रोटोकॉल, बड़े बड़े टाटा पी पी पोपा, और बेकार के इशाइये, बेकार के सेमिनार, बेकार की बैठ के तकरीरें, अजगरे पहन लो, टोपियां पालो, तो सुतरा पालो, तो बकवास कर लो, मुंह से जिनिया मरिया। असल में ग्राउंड रियलिटी में बेड़ा गर्क कौम का तबाही बर्बादी है। बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म। बस हम जब कहते हैं हमारे लफ्जों को एक दिन दुनिया याद करेगी, कौन याद करेगी भाई। हम जब कहते थे ना, हम महसूस कहते आ रहे थे, जब ये टास्क कर रहे होते थे, छोटी शुजात आया तो लड्डू बच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने पर। इतनी चूतिया कौम है ये,
دیکھیں فرانس میں چوٹی نے فون کیا لڈو کھانے پہ ہیں جی، لڈو فرانس میں بچ رہے ہیں چوٹی شجاعت جو ہے وہ پاکستانیوں میں. یہ ان کا کیلیبر ہے دلوں کا. جو آتا ہے لڈو بانٹتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ڈھول ٹمکے کرتے ہیں، وہ آ جاتا کھڑے کے فوٹو کھنچوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے صحافی ہیں، بڑے دانشور ہیں، فوٹو دانشور، فوٹو صحافی، فوٹو میڈیا. اس لیے ایسے لوگ ان کے اوپر رول کرتے ہیں. ان کا کیلیبر یہ ہے. یہ آتے ہی اس لیے ان شعبوں میں ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے. کیا کہنا لگا تھا اتنا تکلیف ہوتی ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے انسانوں کو، انسان ہی سمجھتے ہیں وہاں پہ ایسا قدر ہے. پاکستان میں تو غریب آدمی کو کوئی اس کی پتہ نہیں کب کس کو اٹھا کے لے جاؤ، اس کو مار مار کے مار دو. کو پوچھنے والے ہیں جو 2 بچے مر گئے ہیں ان کا کوئی حکومت کا بندہ ان سے پوچھے، ان کے ایس ایچ او کو تھانے کو معطل کرے. کوئی خبر آئی ابھی تک؟ غریب کے اسے مار دیے گئے تھے تو معطل نہیں تو اسے آئی جی نے دی، وہ کیا وہ اس کے اوپر اس کو سب جلش کر دی، ڈی پی او کو دی. اس سے کچھ ہوتا ہے کہ انسان کی جان چلی گی واپس آ سکتی ہے؟ بہت ظلم ہے بھائی، بہت ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. یہ ظلم پہ ظلم جو کیا بچ جاتے ہیں. ایک بندے کو اتنا مارا ہے اس کی پیٹ سوکھ ہے، جہاں جہاں مار پڑتی ہے بار بار ستر لتر پڑے تو خون جم جاتا ہے. پوری کھال اس کی سوکھ لی پھٹی ہوئی ہے، نکالا اب اس کا اسپتال بیٹھی ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی لا ہے؟ یہ تھانے جو ہے یہ ٹارچر سیل بن چکے ہیں گنڈوں کے. غنڈے بیٹھے ہیں. وہاں پہ الگ تھانوں سے الگ جگہ نہیں ہوئی، وہاں پہ منتقل کر کے وہاں مار مار کے پتہ نہیں اپنی بیوی کا، بچوں کا، محبوباؤں کا، گانوں کا، رانڈوں کا غصہ جا کر نکالتے. ڈلے بھینچو غریب آدمی پہ نکالتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ اپنے خاندانوں کا جو غصہ ہے وہاں پہ جا کے نکالتے ہیں. ہاں، سمجھے نا؟ ورنہ یہ ہو سکتا ہے انسان کسی انسان کو اتنا مارے تو مر جائے. ہاں یہ وحشی ہے، وحشی. یہ جو ہے نا وحشی ہو چکے ہیں، سمجھے نا؟ اور پھر یہ تقریریں کرتے ہیں، پھر تعریفیں ہوتی ہیں. پنجاب پر اچھا چل رہا ہے تو سندھ کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، یہ بڑا ہوا ہے. ڈرامے بازی، بکواسیات. ان کو کیسے خدا اتنے بڑے عہدے دے دیتا ہے میں تو آج تک سمجھ نہیں پایا. میں بھی نہیں سمجھ پایا کہ کیسے خدا جو ہے ان لوگوں کو اتنے بڑے عہدے دیتا ہے. کہاں بیٹھا ہے خدا؟ کیا کر رہا ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، آخر کہاں بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس طرح دیکھ رہا ہے اتنا ظلم جو ہے؟ مجھے یہ تو خود آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. سمجھے نا؟ انتہا ہو گئی ہے. مطلب ہے ایک جو لیول تھا اب تو پانی سر سے گزر گیا اوپر. سمجھے نا؟ اس قدر ظلم. ملک ہوتا ہے نا، ہمیں آ تو چکی ہے ملکوں میں کئی ونس ان بلو مون کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کوئی خبر آ جائے، ورنہ وہاں تو ہر روز 85 خبریں آتی ہیں. اتنی بندہ کہتا ہے اس ملک میں ایک خطر مچا ہوا ہے، یعنی مطلب عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. یعنی اتنے واقعات ہوتے ہیں. ہاں ہر روز کوئی ایسا نہیں. کبھی نہیں ہوا، کسی ملک میں نہیں ہوا. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، کبھی نہیں ہوا. ہمارے ملک میں اتنے واقعات ہوتے ہیں، اتنے ظلم و ستم کے، زیادتیوں کے، یہ وہ لیٹر پتر کہ بندہ دیکھ کے دماغ پاگل ہو جاتا ہے. کسی ملک میں یہ واحد ملک ہے جس میں اتنے واقعات ہوتے ہیں اور کسی کے جکان پہ جو نہیں دیں گے. نعرے بازی، پریس کانفرنس ہے، ادھر وہ پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہے، ادھر ایک چسکا لگا ہے صحافی بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے رہو. ہاں وہ بھی مجبور ہے نا. آئی ایس پی آر جو ہے وہ پیچھے ڈنڈا دیا چوتڑوں کے اندر، چلو کانفرنس کرو، کیمرے لے کے آ جاؤ اور ہماری جو ہے ریکارڈنگ کرو اور اس کو جو ہے شائع کرو. سمجھے نا؟ سول بھی سب جگہ پریس ہاں کانفرنس سول کانفرنس فوجی ہو گئے ہر جگہ پہ. سب جو ہے بس. آپ کا کام نہیں ہے. ہاں نہیں تو تمہاری جو ہے وہ لائسنس مجھے سمجھ آئے گی کہ پاکستان میں حکومت ہوتی کیا ہے. لائسنس کیسے. پاکستان میں ہر بندے نے حکومت ایسے چلائی ہے کہ وہ جس سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے نا، پرائم منسٹر ہو، اس کے وزیر ہوں، پریزیڈنٹ ہو، یہ وہ اپنی سیٹوں کی بینیفٹس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کی پاور کو انجوائے کرتے ہیں. کام کوئی نہیں کرتے پبلک کا. ان کے نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو صوبائی لیول پہ وزرائے دوسرے تیسرے، وہ بھی اپنی سیٹوں کو انجوائے کر رہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ان کے نیچے جو سرکاری افسران بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کو سنبھال کے، وہ اپنے مزے لوچے لوٹ رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، عوام جو ہے اس کے لیے کوئی حکومت نہیں کرتا. ہاں وہ لوالے سے یتیم کی یتیم ہے.
मुसमरात अवाम तक आए। आते हैं ना यूरोपीय कंट्री में जब कोई काम होता है तो नीचे तक मुसमरात आते हैं ना, चलते चलते सरकारी इदारों से होते होते आम आदमी तक पहुंचता है ना किसी कोई फैसले का कोई सम्राट। वहां तो सवाए ये फैसले पहुंचते हैं, अन्ना टैक्स दियो, अन्य एसटी जनरल टैक्स है, अन्य महंगाई है। अभी कितना मुर्गियों महंगी होगी, चलो जी अभी नहीं खबर दे रहा हूँ। ना जी, उन्होंने कहा जी मुर्गियों हो शुबा कीमत में इजाफा हो गया। ना जी, हाँ जी, मुर्गी खाओ, पत्थर खाओ तो कहा खाओ। ओ ना जी, हाँ जी, ओ दाल 250-300 रुपए की किलो है, मुर्गी उन्होंने पता नहीं कितने गुना उसकी प्राइस बढ़ गया। ये चक्कर क्या, ये कौम को भूखा मारना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आखिर? ये सिविल वॉर पे लाना चाहते हैं इन लोगों को? मुझे तो लगता है कि ये चाहते हैं कि इनके घरों में घुस के फिर वक्त आ जाए कि ये इनको काट काट के जो है टुकड़े टुकड़े करेंगे इनका। जब भूख जब बढ़ जाएगी, तो जब ये इंतहा हो जाएगी, फिर तो मेरा ख्याल है ये खुद ब खुद इनको ऑफर कर रहे हैं कि भाई हमारे घरों में घुसो और हमको मारो आके। वो दिन आ रहे हैं भाई, और उसका आगाज हो चुका है। आपने देखा होगा डॉक्टर आयशा का जो कत्ल हुआ है, मैंने उस वीडियो को शेयर किया था, आप देख सकें। ऊपर से गोलियां चला रहे हैं वो टेरिस से, नीचे जो है वो हैं वो जो भी हैं गुंडागर्दी वाले वट एवर कार में बैठ के फरार होने की कोशिश करें, ऊपर से गोलियां चल रही है। बिल्कुल लग रहा है जैसे शाम है। अच्छा, हाँ शाम लग रहा है, जैसे शाम में गोली चला रहे थे, ऊपर से नीचे से गोली चल रही है, ऊपर चल रही है, हाँ पीछे हो रही है, फिर आगे फिर टाटा, फिर पीछे अपना गोलियां ऊपर गोलियां चल रही है, फिर गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर हाँ हाँ गाड़ी चल नहीं रही है, घबराहट में, फिर गोलियां चल रही है कार के अंदर, फिर वहां से निकली, गाड़ी खोली, फिर गाड़ी से लेकर भागे। वो वीडियो है मेरे पास, भेज देता हूँ आपको। वो दिन शुरू होने हैं, आपको लगेगा, अगर मैं आपको ना कहता हूँ आप भी समझते ये शाम या इराक है। ओए होए होए, ये कराची में हुआ है, कोई सेफ्टी नहीं किसी की। ये तो हर किसी से ले रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाले, पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले, किसी जब घरों में खुद ही फायरिंग करके अपने आप को सेव करना है तो ओए होए 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 होए। आप उसको फायरिंग को देखिए, और को मैं उसको लगा दूंगा अपने बात पेज के ऊपर, लोग देखें। हाँ, ये तो होगा, ये तो लगता है ये तो होगा। ये तो आपको याद हो, हाँ याद आया मुझे, ये तो हमने बहुत पहले कहा था, याद आया आपको, हमने कहा था कि ये सिविल वॉर की तरफ जाए ये मुल्क। हमारी बातें रिकॉर्ड पे, सिविल वॉर पे जाएगी कौम, बिल्कुल जाएगी। ये कौम जाने वाली है सिविल वॉर पे, देखते जाए। ये रास्ता नहीं रोक सकते, फौज कोई नहीं रास्ता रोक सकती भाई। सिविल वॉर का रास्ते रोकती इस वक्त ये लोगों को पता चलता जा रहा है कि क्या हरामीपन चल रहा है, ये खड़े हो जाएंगे। ये लोग एक दिन जब अपने बच्चों को भूखा मरते देखेंगे तो खुद को खुदकुशियां करने के बजाय, जिसे बाबे ने खुदकुशी की है अपनी बेटी की शादी न कर सकने के ऊपर, अफसोसनाक तस्वीर है वो। ये क्या करेंगे, ये जिम्मेदारान को फंदों पर लटका के खींचेंगे। हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा देख के। ये वक्त आए, मैं कहता हूँ स्वाद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा अगर ये सारे लटके हों। ओए होए होए, वक्त आए, खुदा करे ये वक्त जल्दी आए, बहुत जल्दी आए कि ये जो कौम जो है ये खड़ी हो जाए और जो है इन सब के घरों में घुस के ना इनको लटकाए, इनको खींचा करे। खुदा कसम चढ़ जाए ये कौम, इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चढ़ जाए, बहन चो फौजियों के ऊपर चढ़ जाए, बहन चो ये जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं। मैं कहता हूँ एक इनका बैंड बजा दे चढ़ के। बस ये वीडियो देख रहा हूँ सर, एकदम क्यों बना उड़ा देता था। क्योंकि हमारा वक्त तो जब आएगा, अगर हमारा वक्त आ गया तो फिर तो देखो इनका क्या करते हैं। मगर अब ये कौम को खुद ही जागना पड़ेगा ना, अब कौम खुद ही पड़ेगा भाई। मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, जुल्म सितम से मर रहे हैं। खुदा की कसम ऐसी खबरें आती हैं कि बहरहाल मुझे भेज देना बाद में यार। कोई बात भेजूंगा। अभी हाई स्कूल पढ़ने अरबिया में एक उस्ताद ने नवी जमात के तालिब इल्मों पर कुर्सी की फट्टी से तशद्दुद किया। पागल हुए हैं सब पागल हुए हैं सब। असल में वही बात आ जाती है, वही बात आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं है। उसके बाद लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, समझे ना। सबसे ज़्यादा जब पेट पे लात पड़ती है ना, और तो कोई बात नहीं, जब पेट पे लात पड़ती है ना भूख की, एक कुत्ते का पिल्ला बैठ के बिशारत जैसा दल्ला की शक्ल देखे सालों में इनके तबाह करने के लायक लोग हैं। वजीर
मुअत्तल करे, हाँ ज़िला पंजाब जो है वो धुआं कट के तो इमरान खान की लुली न चूसे तो इनको मुअत्तल कर। हाँ दर चौथ है बड़े वजीर कानून बयान दे रहा है, पंजाब का वजीर कानून जिसके अंदर पुलिस आती है वो बयान दे रहा है। ये बड़े अजीब गरीब पता नहीं क्या बोल रहा है कि ये इस तरह के काबिल मतलब मतवाकियात हैं तो ये वो भाई बोले आकर चोर की तरह बैठा हुए भोसड़ी का राजा बिशारत। मैं तो पुराना जानता हूँ, टक्के टक्के जिनकी औकात नहीं ये टक्के वजीर बने पंजाब का वजीर कानून। पहले राणा सुना इन्होंने नमूना लगाया था, अब ये लगाया हुआ है और ये बयान दे रहा बजाय आके कहता मैंने इनको मुअत्तल कर दिया, पूरे थाना मुअत्तल कर दिया, उधर को मुअत्तल कर दिया, उनको मुअत्तल कर दिया, हाँ वहां पे जुल्म हुआ उनको मैंने मुअत्तल कर दिया। पंजाब में है ना सारा जुल्म, बिल्कुल बिल्कुल मगर नहीं कर सकता ना, औकात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी नहीं करने देगी, उखाड़ देगी सीट से। इनको वजारत इंजॉय करनी है सिर्फ, और इनकी औकात ये है। एक आदमी ने पुलिस वाले से पूछा तुम्हारा वजीर कानून कौन है? एक आदमी इंटरव्यू कर रहा था टीवी वाला, अच्छा पुलिस वाला से सर को पूछा था आपका वजीर कानून कौन है? कहते सानू नहीं पता जी। हमने साढ़े वास्ते सारे काबिल एहतराम ने जी। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ आईजी कौन है? और जी सानू पता नहीं सारे जी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ वजीर वाला कौन है? तो 3 लोगों ने जवाब दिया समान प्रसाद, बाकी ना पुलिस वालों को नहीं पता उनका आईजी कौन है। Oh my God. उनका वजीर Oh my पुलिस God. का वजीर कानून कौन है? खुदा के पैसे से जवाब नहीं कहते जी वो साढ़े से सारी काबिल तमाम ने। अब मैंने कहा इन बेचारों को रोटी से फिक्र हटे भी तनको को चले ना, हाँ वाकई इनको तो धक्के पड़ते होते इधर जाओ उधर खड़े हो साल में भूखे खड़े कोई उधर पैरा दो तो इधर करो तो ये करो, लोगों के पीछे लोगों से चलान कटो तो ये करो वो करो। उनको क्या लगे कौन ये कानून है? उनके घर में कोई रोटी देगा आगे क्या? हसन कौमी असम्बली के अंदर लोग बैठे जिनको कलमा तक नहीं आता, जिनको कायद आज़म का नहीं हिस्ट्री का नहीं पता, जिनको पता नहीं बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, उन्होंने कहा कि पता सवालात किए उनके जवाबात नहीं आते वो इससे बड़ा बड़ा लतीफ़ एक बात है, तो कौमी असेंबली में तो टट्टू पंजू बैठे हैं ना, टके टके के कुछ हसीना जैसे इधर उधर रूढ़ियों से उठा के लाके लगाने वाले लोग बैठाए हुए हैं ना। तो आप ये देखें एसलाल आसन को कुल वल्ला नहीं आती, उफ ओए, होगी वहां पे कहता है कुल वल्ला हुआ तो पता नहीं इधर उधर की गल तेरी होने मगर ओए हाय 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 वो पीपल्स पार्टी ने 30 सीट के लिए नामजद किया था। हाय 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 हाय। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं आपने शायद वीडियो देखी होगी। और आप ये बाबन बात याद रखिएगा। दूसरी बात वो जो हमारा ये इन्होंने पाकिस्तान में लगाया था कुत्ता, जो क्या नाम था जी, वो वजीर दाखिला लगाया था, वो जो झूठ का पलड़ा है नंबर 1 जो कहता होता है जुल्फार के मिर्जा के इसको फोन करो तो केला खा रहा होगा तो पूछेंगे हाँ भाई क्या खा रहे हो तो कहेगा मैं सेब खा रहा हूँ, कहता है इतना झूठा है वो। क्या नाम है जी उसका, वो जो कुंगलाले वाला मैं भूल गया हूँ, हरामी साला पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला। देखिए इसके नाम साले का गुजरते मदरूस लोग हैं, उसको नहीं आता। वो पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, उसमें शुरू हो गया जी उन्होंने कहा अच्छा किसी तलावत कर दो और वो तलावत को ठीक है इन आते ने कल को सुनने इसको आ रही और वो आपका वजीर दाखिला रहा है। इसका वासन आपके मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर है। आरिफ अलवी से पूछ लो, इमरान से पूछ लो, खातम नबी में बोल सकता है उससे पूछो, दूसरा कलमा पूछ लो, मैं जब देता हूँ अगर आ जाए तो जो मरीज ला दें। और यार मैं अब तो वो अभी भी आपकी इसी बात पे बात करता हूँ। मैंने वीडियो देखी है, अब नवाज शरीफ का जो भाई है वो नमाज जनाजा हो रहा था कि पता नहीं क्या उसको जो हाथ आगे बांधते ना, मैंने देखा वो हाथ नहीं पता उसको कैसे बांधने हैं और कहाँ पे अल्लाह अकबर करना है और कहाँ पे नहीं अल्लाह अकबर कहना। नहीं कहानी होगी ना, ये तो करोड़ों लोगों ने देख लिया कि टीवी टीवी आंख से देख। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ है, समझे ना आप। उससे भी ज्यादा लतीफ़ मत का केस आते हैं सबसे उससे ज्यादा मत का केस। आज का जो लेटेस्ट जो है वो लतीफ़ा है, बिलावल आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो शाह महमूद कुरैशी के साथ जाके तो नमाज ईद पढ़ रहा था, कुछ को पढ़ रहा था। अच्छा अब वो साफ लग रहा था, सीधा देख रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी ने कहा किया हाथ उसको हाथ करके उससे ऊपर उठा के नीचे किया ना, फिर उसने अपना हाथ उठाया ऊपर के नीचे किया, उसके बाद उसने जो है अल्लाह अकबर पे तो वो हमेशा लेट तो देखने के बाद का साफ लगा। तो सलाम फेरने का वक्त है तो देख रहे कि सलाम के लिए फेरा टीला उसके लिए सलाम पे राइट पे फेर दिया तो फिर से सलाम राइट पे फेरा।
तौबा तौबा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, द ग्रेट कंट्री, द कला ऑफ इस्लाम, ये करता धरता आज तक अवाम लेकर आती रही है। एक तरफ कहती है पाकिस्तान इस्लामी कला है, जी इस्लाम के नाम पे बना है, और लाती उन्हीं को है जिनको कलमे तक नहीं आते, वो बैठकर इनके फैसले करते हैं। तो इस मुल्क की बेहतरी खुदा की कसम खुदा भी नहीं करेगा। हाँ, कहते हैं कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बना है। ये कलमा जो है, ये जो मुल्क बना है, ये कभी मिटने के लिए नहीं बना, और उसके हुक्मरानों को नमाज रोज़ा नहीं आती। तौबा 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 तौबा। ब्यूरोक्रेट्स को देख रहे हैं, किसानों को देख रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं कलमा तीसरा चौथा कलमा किसी को दुआ कनूत नहीं आती, मैं शर देता हूँ। दुआए कनूत, उफ तौबा करो। दुआए कनूत तो इनके बाप को भी नहीं आती होगी, वो तो बहुत मुश्किल है। और उनसे ये पूछो कि दुआए कनूत। एक और चीज भी है जो कि लंबी सी है, तो मतलब ये कि ये दो चीजें आयतल कुर्सी, हाँ आयतल कुर्सी और दुआ कनूत, अगर ये किसी को भी आ जाती हो तो मैं कहता हूँ हम पाकिस्तान, हम जो भी करना हो मैं सब कर लो। हाँ, दुआ कनूत आयतुल कुर्सी ये बहुत जो है ना डिफ़िकल्ट है, समझे, इनको याद करना। और दूसरी बात ये है कि जो है दुआ कनूत जो है कौन सी नमाज में पढ़ा जाता है, ये भी सवाल करे तो इनको यही नहीं पता होगा कि कौन सी नमाज में दुआ कनूत पढ़ी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल समझा ना, क्योंकि ये जो ना और तीसरा कलमे की बात कर रहे हो, दूसरा कलमा ये पढ़ लें वही बड़ी बात है। तीसरा कलमा तो बड़ी दूर की बात है। दुआ कनूत कौन सी नमाज पढ़ी जाती है और किन रकातों में पढ़ी जाती है? किन रकातों में पढ़ी जाती है। हाँ, ये सारे जो हमारे पास हो ना, ऐसे जर्नलिज्म हो ना, इनको जाके पूछे फटाफट। हमारे लोग पता क्या है, उनको कहना है जनाब अगर कोई असेब हो या कोई जिन आ जाए, रूह आ जाए, तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। एक ब्यूरोक्रेट को किसी मूल्य ने कहा, एक दिन वो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ था, उसको अंधेरे में लगा कोई वो आ रहा है, कोई शायद कोई जिन आ गया क्या, तो पता क्या कहता है, आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी आयतल कुर्सी। नहीं, ऐसे बड़े शर्म की बात है हसन, हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं ना। नहीं, वैसे वाकई सीरियसली बात है, बहुत शर्म की बात है कि हमारे हुक्मरानों को नमाज रोज़ा नमाज नहीं आती। हमारे जो उनको 5 जो हमारे दीन के जो सतून हैं उनके बारे में पूछो, कोई पूछे 5 सतून क्या है, उनको मुझे यकीन है कि उनको नहीं पता होगा कि ये जो इस्लाम 5 सतूनों पे खड़ा है वो क्या है। उनको मैं शर्तिया बोलता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि जो है इस्लाम के 5 सतून क्या है। समझाई ना? नहीं पता है, एक ड्रामा बचा हुआ है, ये खुदा की कुदरत है। ये मुल्क बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है, इनकी जलने हसद के तो गले में लटकाए हुए हैं जी। इन लोगों की औकात, इन लोगों के काले दिल, इन लोगों की काली नीयतें, इन लोगों की वे बस लफ्ज नहीं है, ये बर्बाद हो गए। ये लोग बर्बाद और तबाह हो गए। ये इसीलिए कि ये लोग शायद इस्लामी लोग, ये लोग जो बिल्कुल वक्त लोग जिनको जिस मुल्क का नाम लेकर बना था कि किस वजह से बना है, उस मैटर के हवाले से एक बंदा भी हुकूमत में ना हो, सदर से लेके नीचे तक, तो भाई वो मुल्क पर रब कभी रहमत नहीं करता। ये इसीलिए इस हालात में, और ये निकल नहीं पा रहे हैं, ये जिन हालात में चले गए हैं ना, ये तो बड़े ढीठ हैं। कल भी हमने बात की थी, बहुत बड़े ढीठ है कि ये बगैरत, क्योंकि इनका खून बगैरत हो चुका है ना, इतने बगैरती कर करके ये बाबा मुंह चमका के आ जाते हैं। वरना जिनको पूरी दुनिया छोड़ दे, वो टीवी पे कह रहा था कि पूरी दुनिया ने छोड़ दिया है पाकिस्तान को, तो वो अल्लाह का अज़ाब ही है ना। बहुत बड़ा अज़ाब है भाई, पता नहीं किस किस की बददुआ। उधर वो तो जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। ये गज़वा हिंद में एक टीटी लेके खड़ा हुआ है, एक बुड्ढा बाबा कि मैं हाँ जी ऐसी था मार देंगे, हाँ धा मार देंगे। ये किसी गाँव में होते हैं, कोई जमीन में खड़ा हो जाए, हाँ मैं तो सीधा कर रहा, डिस्चार्ज भी होती है।